Continuing from the previous slide, I would like to discuss more about the standards, that is process control. I was talking about then the process control. We have talked about that all of the different processes should be carried out in the university, should be rather it is teaching, delivery, and students learning and student support or evaluation should be according to the objectives of the university. The sixth standard is about faculty. There must be enough full-time faculty who are committed to program to provide adequate coverage of the program areas, courses with continuity and stability. Full-time faculty and part-time faculty, there are two major streams. Full-time faculty, that is the regular permanent faculty of the university, properly hired. And there is a visiting faculty that come only for delivery of lecture. But within the permanent faculty, there are also some people who are not fully involved in the program's requirements. They have some other different administrative assignments, like if faculty member is working as controller of examinations, as sports, looking after the sports, looking after other assignments, those are the administrative assignments, he will not be considered as the full-time faculty. Committed to the program to provide the adequate coverage of the program. The interests and qualifications of all faculty members must be sufficient to teach all courses, plan, modify, and update courses and curricula. So it's very simple to understand that if the faculty members' qualification meet to the requirements and his interest is there, then he can be able to teach all the available courses and assigned courses, and plan, modify, and update the courses or curricula when it is needed. कोर्स में डीपली गो थ्रू होने के बाद ही टीचर को पता चलता है कि क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है, किस चीज़ को कैरी करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं कैरी करना चाहिए, क्या चीज़ इसके अंदर और ऐड करनी चाहिए, क्या कंटेंट और चाहिए, क्या यानी जिस तरह सॉरी टू से अभी मैं ये आपको क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं ये कोर्स, तो मैं ये फर्स्ट टाइम कोर्स पढ़ा रहा हूँ. मैंने यहाँ नोट किया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोट भी की हैं, मेरे पास भी हैं, और माइट बी नहीं, डेफिनेटली मैं अथॉरिटीज़ को कन्वे करूँगा कि एज अ कोर्स टीचर I have highlighted these points that according to my opinion these are not relevant. तो ये irrelevant की जगह जो more relevant towards teacher education होंगे क्वालिटी के, मैं वो रिकमेंड करूँगा कि मुझे मेरे मुताबिक ये इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाने चाहिए. एट द सेम टाइम मेरी रिकमेंडेशन के साथ साथ जो असेसमेंट टीम है इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही, जो मेंबर्स हैं, वो भी मेरा इंटरव्यू करेंगे एज ए टीचर कि जी आप इसको पढ़ा रहे थे, या प्रीवियस कोई एक दो लोग जिन्होंने पढ़ाया होगा पूछेंगे उनसे कि जी इसमें आप अपना इनपुट दें. तो उनकी रिपोर्ट में भी वो चीज़ें जब इनकॉर्पोरेट होंगी तो फाइनली एकेडमिक काउंसिल परमिशन देगी इस बात की कि एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए जो इस कोर्स आउटलाइन को रिव्यू करे. तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, रुकता नहीं है. और अगर मेरे से बाद में कोई अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, वेल अवेयर अबाउट द मैनेजमेंट
एंड क्वालिटी इसको करेगा, तो उसकी एक अपनी राय हो सकती है। तो हर किसी की राय जो है वो जब डॉक्यूमेंटेड हो और रेफरेंस बेस्ड हो तो उसका एहतराम किया जाता है। और इन स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से फैकल्टी सपोर्ट कर सकती है in the course plan, revision, and modification. All faculty members must have a level of competency that would normally be obtained through graduate work in the discipline. The majority of the faculty must hold PhD in the discipline. You know, अभी तो प्रोविजन तो है कि वो रेलिवेंट डिसिप्लिन में एमफिल हो तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर आ सकता है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट या अदरवाइज जो प्रैक्टिस चल रही है लेक्चर लिए नहीं जा रहा। their PhD candidates are available to become lecturer in the university. तो वो ऑफर कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज कि हम विद PhD एज ए लेक्चरर आना चाहते हैं, हमें लें। तो ये कंपटीशन भी है। अदरवाइज जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इसकी HEC की रिक्वायरमेंट भी है कि आप उनको मेजॉरिटी जो है वो PhD की हो, कि कोई भी प्रोग्राम कहीं ऑफर होने के लिए मस्ट है कि एटलीस्ट 2 लोग उस रेलेवेंट प्रोग्राम में PhD हो तो वो प्रोग्राम आप ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। All faculty members must remain current in the discipline and sufficient time must be provided for scholarly activities and professional development. Also, effective programs for faculty development must be in place. तो ये जब टीचर एक दफ़ा आ गए और ज्वाइन कर लिया तो उनको अदरवाइज असाइनमेंट्स देने के जो आप उन्हें यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स, तो बहुत कम स्टूडेंट्स की तरफ दे पाते हैं, कम पढ़ाते हैं। जिस तरह मैं पिछले को 3 साल नहीं पढ़ा पाया, तो उससे प्रोफेशनल डेवलपमेंट और जो स्कॉलरली एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली आई फील दैट कि उनको कट लगता है। आप इन्वॉल्व ही नहीं होते, आपको पता ही नहीं कि विद इन दैट टाइम क्या करेंसी आ चुकी है, चीज़ें नॉवल क्या हैं, आइडियाज़ क्या हैं, फिलोसफीज़ कौन सी इंडल्ज हुई हैं, और मर्जर ऑफ द आइडियालॉजी कहाँ कहाँ हुआ है, और जो कंटेंट्स हैं वो कितने नावल किस तरह से, तो ये एक डेफिशिएंसी रह जाती है। सो फॉर द टीचर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी fully involved in the activities of academics and scholarly activities के अंदर। All faculty members should be motivated and have job satisfaction to excel in their profession. It is very necessary. ये कंपोनेंट तो है, लेकिन बस एज ए कंपोनेंट ही है कि जॉब सेटिस्फेक्शन हो और वो मोटिवेटेड हो। तो as compared to the private institutions and as compared to the tenure track teachers, and if we compare across the globe, the public sector universities are not much paying bodies, whereas otherwise the institutions other than public sector universities are better paying parties. So people shift swiftly एक जगह से दूसरी जगह वो स्वाइप करते रहते हैं। एक्चुअली मेंबर्स शुड बी मोटिवेटेड, तो मोटिवेटेड ये वो एक बड़ी आम सी बात है, सादा सी बात है कि जब कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो मोटिवेशन कैसे होगी, किस तरह वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकेगा। एक और बात यहाँ बड़ी डीप फिलोसफी है बाबा जी बुल्ले शाह की कि पंज बिना इस्लाम दे बुल्लिया ना, पंज बिना इस्लाम दे ते छेवां बुल्लिया टुक, छेवां ना मिले ते पहले पंज भी जाते ने मुक। तो बाबा जी का कहने का मतलब ये था कि इरकान इस्लाम 5 हैं बेसिकली, नमाज रोज़ा ज़कात हज जो भी है कलमा। तो
एक छठा रुकन इस्लाम भी है जो रोजी रोटी है। वो पेट न पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। तो किस तरह से डेडिकेटेड, मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड कोई काम करेगा जब तक उसकी वो नीड्स नहीं पूरी हो रही जो सोसाइटी में उसको चाहिए। तो यू नो आपकी सिक्योरिटी की, फूड की, ट्रांसपोर्ट की, रेजिडेंट्स की, मेडिकेशन की, चिल्ड्रन एजुकेशन की, ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर ये अप टू मार्क पूरी हो रही हो तो लोग सेटिस्फाई होते हैं। सेटिस्फाई हो तो फिर वो अपने काम में जी लगा के काम करते हैं। तो सॉरी टू से ऑन एयर हेयर एंड शेयरिंग एट लार्ज, यही वजह है कि हम असातिज़ा कभी छुट्टी नहीं करते। हमारे वीकडेज जो हैं वो ऑन ही रहते हैं, ऑफ नहीं होते। ऑन क्यों रहते हैं कि हम उसमें अपनी उस अर्निंग में इजाफा करने के लिए, अपनी उन टारगेट्स को मीट करने के लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ती हैं। तो हमें वेस्टिंग में कहीं और कहीं और कहीं और कई पैरेलल काम करना पड़ते हैं। जब इस तरह करते हैं तो फिर फोकस तो अल्टीमेटली कम हो जाता है। जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं वो उतनी वेल फोकस्ड नहीं रहती। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, द इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव the infrastructure to support new trends in learning such as e-learning. No doubt e-learning is the latest and utmost requirement, and the infrastructure for this should be available. There should be access to the digital laboratory, e-library, to the article, to the books online. Uh, Student can access and learn at their place. The library must possesses an up-to-date technical collection relevant to the program and must be educated staffed with professional personnel. तो जब लोग प्रोफेशनल होंगे तो वो आपको बहुत कम टाइम में इजीली चीज़ें एक्सेस कर सकेंगे और अवेलेबल कर देंगे आपको वो रेलेवेंट चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। क्लासरूम्स, फॉर दिस पर्पज एचईसी ने क्या किया है कि उन्हें पर्न दिया है, एक स्ट्रांग किस्म का इंटरनेट की फैसिलिटी दी है और इस हवाले से वो काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी ये करंट एग्जांपल जो ऑनलाइन कोर्सेज की है, ऑनलाइन क्लासेस की है, इसमें भी उनकी सपोर्ट है। अगर यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या यूनिवर्सिटी के पास अपने पास ये चीज़ें सारी अप टू मार्क ना हो तो किस तरह ये मुमकिन था कि ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस हो सकती और फिर इसी तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम और असेसमेंट और वो सारी चीज़ें हो सकती। Classrooms must be adequately equipped and offices must be educated to enable faculty to carry out their responsibilities. No doubt ये एक रिकमेंडेशन है, एक स्टैंडर्ड है, एक इसको यूनिवर्सिटीज़ ने पूरा करना है। They are suffering the budget cuts, they are suffering the run short of income. So up to their own level, they are managing themselves. No otherwise support from the university side is available to meet these needs. There must be sufficient support and financial resources to attract and retain high quality faculty and provide the means for them to maintain competence as teachers and scholars. ये वही बात है जो पीछे मैं अभी कर रहा था कि टर्नओवर क्यों बढ़ता है, लोग क्यों स्विच ओवर करते हैं, क्यों लोग फ्रीक्वेंटली स्वाइप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। तो वही रीजंस हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करे, इंस्टीट्यूशन अगर मेडिकेशन की, रेजिडेंस की फैसिलिटी दे रहा है, ट्रांसपोर्ट दे रहा है, तो ये फैसिलिटी सपोर्ट करती हैं स्कॉलर्स और टीचर्स को। तो अगर ऑनरेरियम कम भी हो तो वो अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम विद लेस ऑनरेरियम एंड विद नो फैसिलिटीज, ओनली जो आप कह रहे हैं कि इंतहाई नीडी और मजबूर लोग जो हैं वही स्टिक रहते हैं, वरना लोग शिफ्ट होते रहते हैं। देयर मस्ट बी एन एडिक्वेट नंबर ऑफ हाई क्वालिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक सर्टन नंबर ऑफ हाई क्वालिटी ग्रेजुएट हो
यानी ये कहाँ से पता चलता है? ये जो उसके एलुमनाई होते हैं, एलुमनाई एक्चुअली इदारों को सपोर्ट करते हैं, तो उसकी पहचान होते हैं। दे आर द एम्बेसडर इन द सोसाइटी of any of the institution, so it's very necessary for any of the institution to be have good networking in the society through their graduates. Such assistants are very necessary part of the departments and the institutions as the support towards uh, assisting and supporting the research culture. And the PhD students are the, you can say, आवर क्लार्क कह लें इसको, आप चेरा मोरा कह लें, यूनिवर्सिटीज़ का ये होते हैं। इनकी वजह से ही रिसर्च का जो प्रोसेस है, रिसर्च कल्चर जो है वो डेवलप होता है। तो सो you the PhD students are very special to us. That is why on the basis of this point, I always of the point of view that the PhD students are not only the students of the university, they are our colleagues there, because वो लेवल ही वो अचीव कर रहे हैं जो रिसेंटली हमने किया है। तो हमें उनको अगर कोलीग बना के करीब करके उन्हें सपोर्ट करें तो उनकी वो लर्निंग की कैपेसिटी और चीज़ें समझने की कैपेसिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है, और यही सीखने सिखाने के अमल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड to acquire and maintain library holdings, laboratories, and computing facilities. So, without financial assistance, the institutions, how can support these things? यहाँ से प्रोडक्शन कम है नज़र आती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट में फिर लर्निंग होगी और वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगी और उनकी लर्निंग बेटर होगी, आउटकम अच्छा होगा, और लर्निंग कल्चर एंड रिसर्च कल्चर जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो थैंक यू फॉर दिस। आई वुड लाइक टू शेयर द रिपोर्ट्स, assessment reports. The reports prepared on the basis of these standards have been identified by the self-assessment program of Higher Education Commission. ये जो उनके सेल्फ असेसमेंट मैनुअल है, ये एक्चुअली मैं मैनुअल आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो जो असेसमेंट टीम्स हैं वो रिसर्च अपनी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करती हैं अबाउट प्रोग्राम। तो लेट मी शेयर विद यू दैट मैनुअल to have a deep look on it. I am going towards that. Just a minute, I am sharing with you. I think so it is visible to you, the self-assessment report SAR 2019 to 20। ये हालिया साल की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, किसी भी एक प्रोग्राम के बारे में। तो आई थिंक सो दिस वन इज अबाउट द MA एजुकेशन। यस, MA एजुकेशन जो डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप में ऑफर किया जा रहा है या जहां कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किया जाता है। तो ये आप देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम टीम एवेल्युएशन के 2 लोग मेंबर हैं, जिस तरह के प्रोग्राम टीम मेंबर 1 और प्रोग्राम टीम मेंबर 2 जो हैं, और ये सिग्नेचर डायरेक्टर के साथ करवा के सबमिट होगी QEC में।
और यही फिर फर्दर जो है क्यूईसी प्रेजेंट करेगी हायर एजुकेशन एकेडमिक काउंसिल में और फिर हायर एजुकेशन कमीशन में जाएगी। तो हम डिटेल में इसको देखते हैं कि जी इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाती हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा कि इसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरियन गिवन होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये मैनुअल बना है और ये मैनुअल सपोर्ट करता है टुवर्ड्स असेसमेंट टीम। तो हम ये देखते हैं कि हाउ कम्स दिस। Each program must have a mission, measurable objectives, and expected outcomes for graduate. Outcomes include competency, tasks graduates are expected to perform after completion the program. A strategic plan must be in place to achieve the program objectives. The content to which these objectives are achieved through continuous assessment improvement must be demonstrated. So the first standard in this regard is the program must have documented measurable objectives that support initiation mission statement. अब देखें जी इस रिगार्ड इन दिस रिगार्ड द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ बताई गई है कि वो क्या है। अगर आप इसको पढ़ सकें, to prepare dynamic leaders and practitioners in teaching, research, and management, having content excellence, pedagogical competence, commitment, and integrity, who may ensure quality and sustainable development at all tiers and sectors of education. तो ये हमारा ये मिशन स्टेटमेंट थी। अब हम देखते हैं कि यूई मिशन स्टेटमेंट इज टू क्या क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन स्टेटमेंट के अंदर, कि क्या करती है मिशन स्टेटमेंट में। हमें क्या बताया कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या करना है इन्होंने। दैट इज 1. ऑफर नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एकेडमिक प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस। ये प्रीवियस क्लासेस में शायद किसी डिस्कशन में किसी स्कॉलर ने कहा था कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें HEC के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वही काफ़ी हैं, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या वो बाद की बात है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के मिशन स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न है कि ऑफर नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तब भी होंगे ना जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होंगे। देयरफॉर ये हम क्यों ऑफर करते हैं, हमें क्या प्रोड्यूस करना है? हमें प्रोड्यूस करना है क्लासरूम टीचर्स टू द नीड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ वेरियस लेवल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की मिशन स्टेटमेंट में मौजूद है कि उन्होंने एकेडमिक लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पर। एजुकेशनल लीडर्स एंड मैनेजर्स, educationists, researchers, and curriculum developers. Educationists, researcher and curriculum developers. Second है provide certificate and degree programs through continuous and virtual education modes for the teachers of tertiary level. You know tertiary level university level है. Integrate pre-service with in-service teacher evaluation education. Make university a thriving hub of educational research and knowledge creation. Make teaching profession attractive to the youth by providing quality programs, providing fast track degree acquisition routes to the students.
equal emphasis on the quality and quantity of the product. Point to be noted here. Let's discuss afterwards. Emerge as a leader institution in various branches of education. Learn and contribute through linkages with the national and international academic community and society. Take equity measures to provide quality education. So these are the according to the mission statement of the university कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को हमने प्रोड्यूस करना है जो लीड भी करें, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में सपोर्ट करें सेकेंडरी लेवल पे, और यूनिवर्सिटी का पर्पस है कि वो प्री सर्विस और एंड सर्विस और टर्शरी लेवल पे लोगों को ट्रेन करे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड प्रोग्राम ऑफर करे और एक वो कम्युनिटी और सोसाइटी प्रोवाइड करे जो इन सब को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सके और इक्विटी मेजर्स ले, जहां ज़रूरत है वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अपना रोल प्ले करे और इमर्जिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे पेश करे अपने आप को। तो वो हम कर चुके, वो हम कर रहे, हम ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे, हम कॉलेजेस को, हम यूनिवर्सिटीज़ को, हम एचईसी के एजेंडे पे, हम मैनेजमेंट को, हम पीएचईसी का एकेडमी बना चुके। सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ कम टू द मिशन ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम हैज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मिशन स्टेटमेंट येट. अब देखो यहाँ ये रिपोर्ट है, अब वो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के मुताबिक जो एवेल्यूएशन टीम है उसने अपना कमेंट दिया है कि मिशन ऑफ द प्रोग्राम के अंदर मिशन स्टेटमेंट नहीं है, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम्स हैं, अभी मिशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, इन पे बात कर लेते हैं। ये वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके भी कोर्स आउटलाइन के स्टार्ट में लिखे होते हैं, तो ये हर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बल्कि कोर्स आउटलाइन के थोड़े डिफरेंट होते हैं, प्रोग्राम के थोड़े वाइडर कैनवस में होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं जी।